हेलो बच्चों, वेलकम टू अगेन। बात करने जा रहे हैं गॉस लॉ की। और गॉस लॉ आया और उसकी डेफिनेशन का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स ऑफ द गॉस लॉ। नाउ व्हाट गॉस सजेस्टेड, गॉस ने कहा कि अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस से या फिर एक क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना चाहें तो वी ऑल नो फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ई, that is the electric field, and the vector element of that part or the segment of the body that we call as the elemental part or the ds of a body। अगर इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो we can find the flux of a body, and उसी फ्लक्स को हमने इक्वेट करा चार्ज के बराबर। गॉस ने बोला कि if we need to calculate the flux through a surface we can also calculate it by 1 upon epsilon naught time of a charge। तो अगर हम लोग इसको एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में देखें, so that is what QE, what we say as the flux. It can be represented as the integral of E dot ds, where E is the electric field and ds is the elemental component of any surface, right? That is ds। अगर इसको integrate करते हैं, the results that we can see here is Q, that is the charge enclosed in the body upon the epsilon naught। Epsilon naught is what you know is a constant, जिसको हम लोग बोलते हैं permittivity of the free space P। So now for all the charges, इसका algebraic sum भी आ सकता है, the calculations that was the Gauss suggested। The topic of the discussion is what is the symbol and what is the representation and helpfulness of the Gauss laws in the different surfaces। कैसे हम लोग उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यूज या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। So the importance of Gauss law is this कि with the help of the Gauss law we can find the electric field due to the various arrangement। like हमारे पास अगर शीट है, एक स्पेयर है, स्पेरिकल शेल है, और हमको उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालनी है, दैट कैन ऑल बी फाइंड बाय द गॉस लॉज। एंड स्पेशली फॉर द सिमेट्रिकल सरफेस तो उसमें बहुत हेल्प करता है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को निकालने के लिए हमारा गॉस लॉ। सो फॉर ऑल द arrangements such as charge sheet, thin infinite straight charge wire, and you can say the spherical surfaces as well or a cylindrical surface as well, it comes handy to find the fields in the case where the symmetry is strongly presented। जैसे आपकी बुक में ही बच्चों मेंशन है for all three different cases। जैसे लोग बात करते हैं infinitely long charge wire के बारे में, uniform infinite plane sheet के बारे में, या फिर एक spherical shell के बारे में। So in all the cases you can see we can conclude the result of the electric fields, और उनके यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं द डिपेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे here you can say it is 2k lambda upon r, where lambda is the linear charge density, n is the radial vector of the unit vector हम लोग बोल सकते हैं उसको, और r is the perpendicular distance of the point charge। Similarly for the charge infinite plane sheet, it is depending on the आपका sigma, that is your surface charge density upon 2 epsilon naught, where n is what is a unit vector you know, and e is the direction away from the plane। Similarly for the uniform charge spherical surface, there you have a relation। These important relations are very important for your numerical purposes, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन हमें पता चल जाते हैं, या फिर हमसे सीधे इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ प्लेन शीट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। तो हम लोग को यहाँ पे रिलेशन निकालना होता है। यहाँ पे पूछा जाता है जैसे स्फेरिकल शेल का क्या है, तो यहाँ पे आंसर निकालना होता है। ऐसा ये रिपीटेड क्वेश्चन काफी बार देखे गए हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो मेक श्योर करिए आपको ये रिजल्ट्स याद हो। इसके डेरिवेशन अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द नीट, बट आपको रिलेशंस याद होने चाहिए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस दोनों आते हैं, डायरेक्ट या फिर वैल्यू बेस्ड। तो मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छे से एक बार याद करें, सारी टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, उनके ग्राफ को भी एक बार रीड करें, क्योंकि क्या तो आपसे आएगा डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर ग्राफिकल क्वेश्चंस भी इसके आते हैं। आई होप दिस मस्ट बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।